Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you are all doing well. Today we are going to do the diary of 12th April 2021. So let's start from English Comprehension Diary, unit number 7. Answer questions 5 to 8. Okay students, open your book. Students, as you know, we have completed our first 4 question answers in our previous diary. So, in our today's diary, we will learn the next 4 questions. So, let's start from question number 5. Why did the peasant judge that the trial was God given? Students, write the answer of question number 5. The peasant judged that the trial was God given because the peasant had requested God to put the trial in his fireplace under the chimney. The next one is, what did the neighbor find in the pot when he lifted the lid? And the answer is, he saw poisonous snakes littering and wriggling in the pot. The next one is, how did the trial pot got to the peasant's fireplace? For the answer, open page number 40. And the answer is, the angry man climbed onto the roof of peasant's house and threw the pot down the chimney into the fireplace. The next and the last one is, what is the moral of this story? Okay students, write the answer of this question, and the answer is, honesty, hardworking and faith are rewarded by Allah because Allah likes these qualities. Now let's move to English language diary. Vocabulary revision plus kinds of nouns, all revision. As you know, we have learned all these parts of body. Now it's time of revision. Now revise all these again. Students, as you know, you have learned what is noun and all kinds of nouns in the start of your session. So it's time for revision. Now revise what is noun and all types of nouns. And for noun, you can also concern from our YouTube channel, Miller School and College official channel, unit number 1, noun, lecture number 1, 2 and 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today our science diary is revision of unit number 2. Dear students, open the page number 28. स्टूडेंट्स, कल हमने फर्स्ट हाफ यूनिट नंबर 2 की रिवीजन की थी. आज नेक्स्ट कंप्लीट रिवीजन करेंगे. फर्स्ट हाफ रिवीजन में हमने टेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट की थी एंड 2. आज हमारे पास है रिव्यू एक्सरसाइज पार्ट ए. एमसीक्यूज हैं. व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ नोज कैविटीज़ ऑन द बैक ऑफ द स्कल. नेक्स्ट, ओपन द पेज नंबर 29. फेरेंक्स इज प्रेजेंट बीनीथ द नोज. Organ that helps in the digestive system is tongue. The rough texture of tongue is due to the presence of teeny bumps. What is the scientific term used for those bumps? Papillae. Through which part the middle ear is connected to the back of the nose and throat? Auditory tube. 6.1 is, what is the spiral shaped hearing part of the inner ear called cochlea? 7th one is, part of the body that mainly works on the principles of light, eye. What is the name of very first layer of the internal eye? Cornea. 9th one is, the layer of skin that plays its role in the flexibility of skin is dermis. Last one is, what is the name of gland which produce sebum? Sebaceous glands. Students, next short questions के लिए part भी देखें. Answer these questions briefly. First one short question है, what are receptors and sensory neurons? इसका आंसर पेज नंबर 22 पे. How does nose help in hearing? इसका आंसर पेज नंबर 22 पे.
फर्स्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर रिसेप्टर्स एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, इसका आंसर पेज नंबर 20 पे है। सेकेंड वन, हाउ डज नोज हेल्प इन हेयरिंग, पेज नंबर 22 पे आंसर है। मिडल ईयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोन्स, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट ब्रीफली, पेज नंबर 23 पे आंसर देखिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्वस एंड विट्रस ह्यूमर, इसका आंसर पेज नंबर 26 पे देखें। लास्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन देखें, लिस्ट द फंक्शंस ऑफ सबक्यूटेनियस फॉर टिश्यूज इन स्किन, इसका आंसर पेज नंबर 27 पे देखें। डियर स्टूडेंट्स, आपको पेजेस बता दिए गए हैं, आपको ये निशान पहले से ही लगवा दिए गए थे, आप एक दफ़ा अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट पार्ट सी है, आंसर दिस क्वेश्चंस इन डिटेल। लॉन्ग क्वेश्चन देखें। फर्स्ट वन लॉन्ग क्वेश्चन है, हाईलाइट द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट सेंस ऑर्गन्स। डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर ही की तरह है, जितना पार्ट आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चंस में करवाया गया है सेंस ऑर्गन से रिलेटेड, वही आपने इस क्वेश्चन के आंसर में डिटेल से मेंशन करना है। सेकंड वन क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ नोज, पेज नंबर 20, 21 एंड 22 पे आंसर देखें। थर्ड वन है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ टंग, पेज नंबर 22 एंड 23। राइट डाउन अ नोट ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ईयर विद लेबल डायग्राम, पेज नंबर 23 पे आंसर है। इलेबोरेट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, पेज नंबर 25 एंड 26 पे देखिए। लास्ट वन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन इन डिटेल, पेज नंबर 27 एंड 28। स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन से आपको पेजेस बता दिए गए हैं और इसके आंसर आप पीछे से देख सकते हैं। अब आपने रिव्यू एक्सरसाइज में एमसीक्यूज प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस एंड प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस अच्छे तरीके से याद करने हैं, रिवाइज करना है इसको। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss our maths diary for class 6. Today's diary is exercise 3F. Now open your books, page number 55, exercise 3F. Dear students, in this exercise we will find the HCF and LCM of the numbers involved in real life problem. Let's see question number 1. Question number 1 is, find the greatest number that can completely divide the number 252, 441, 504 and 315. Dear students, यहाँ हमने वो नंबर फाइंड करना है जो इन तमाम नंबर्स को डिवाइड कर दे। तो हम इसको सेपरेट सब अमाउंट्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हम इसके कॉमन फैक्टर्स लिखेंगे जो कि आएंगे 3, 3 एंड 7। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा जो कि इन तमाम नंबर्स का डिविजिबल होगा। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ अ मेजरिंग सिलेंडर दैट कैन एग्जैक्टली measure the liquids of 16 लीटर, 175 लीटर एंड 200 लीटर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने हाईएस्ट कैपेसिटी फाइंड करनी है, इसलिए हम यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जो हमारे पास इसका एलसीएम ओवरऑल आएगा वो हमारे पास इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमने कंप्लीटली डिवाइड नंबर फाइंड नहीं करना, बल्कि यहाँ पे हमने ओवरऑल इसकी कैपेसिटी देखनी है, इसलिए हमने इसका इस तरीके से एलसीएम लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द लीस्ट लेंथ ऑफ अ रोप विच कैन बी कट इनटू होल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ लेंथ 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर एंड 81 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमने लीस्ट लेंथ फाइंड करनी है, तो इसलिए अब हम इसका इस तरीके से एलसीएम लेंगे और हमारे पास ये जो फैक्टर्स आएंगे इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी लीस्ट लेंथ आ जाएगी। इसी तरह आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इब्राहिम आर्ट क्लास हेल्ड 4 days in a month and Quran class held 5 days in a month. What is the next day his both classes will be held in? The last common class was held on 20th of April. डियर स्टूडेंट्स, अब हमने उसकी कॉमन क्लास फाइंड करनी है, तो हम कॉमन नंबर कहाँ पे फाइंड करते हैं? जब हम उसका एलसीएम लेते हैं।
तो हमारे पास यहाँ उसके 4 डेज थे और 5 डेज थे। हम उनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कॉमन क्लास आ जाएगी जो कि है 20 अप्रैल प्लस 20। तो हमारे पास जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो वो क्या होगा, नेक्स्ट कॉमन क्लास विल बी हेल्ड ऑन 20 अप्रैल प्लस 20, मतलब ये डेज इसमें ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास 10 मई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 84, 78, 144, 174। डियर स्टूडेंट्स, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास यहाँ पे जो फैक्टर्स आएंगे उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द लेंथ ऑफ 4 रोप्स आर 115 मीटर, 125 मीटर, 145 मीटर एंड 175 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रॉड विच कवर्स द 4 रोप्स कम्प्लीटली। इसका मतलब अब हम इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि हमने 4 रोप्स की लेंथ देखनी है, तो हम इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसकी कंप्लीट लेंथ आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जैक्टली इन ग्रुप ऑफ 45, 40 एंड 60 टू पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशन। लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमने फाइंड करने हैं, मतलब एलसीएम। हम इन अमाउंट्स का एलसीएम लेंगे एंड एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो फैक्टर्स आएंगे उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा जो कि है 360। डियर स्टूडेंट्स, आपने इन तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इन्हें अच्छे से सॉल्व भी करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।